Like to start my today's poem. Is my screen visible? Uh, no, Momita, right now it is not visible. Okay, let me try once again. Is it now? Yeah, it is now visible. Oh, thank you, sir. The traveler has arrived. Autumn has pitched its tent with mood of staying for a few months. The leaves one by one fluttered down, whispering goodbye, and prepared him the bed to lie. The naked trees modeling around, wrapped by the night mist. The printed scaled creepy crawlies, surpassing the fury moth, echoing the crispy crackling whistle. Squirrels, ants prepared for the long months ahead, bears ready to torpor. The ripe and crisp air breathing out delightful adolescence. Dahlias and celochias are embracing the fall. Apples tends to wear the rich wine blush. Now nights are deep, uttering silence. With mellow moon shimmering high, summer lamp starts fading. The immortal wheel moves towards the winter. Thank you. Thank you, Mandita. What is life? What is life? For some, it's love. For some, it's adventure. For some, it's a book. And for some, it's a poem. With these lines, I would like to call Asta Solanki from first year CS MIT. First of all, a very warm and cheerful good morning to all of you present here. I am Asta Solanki going to present a poetry on the topic a question I want to ask. Sir, I am clearly audible? Yes, you're audible. You're audible. Okay. Life is so strange. Nothing stays the same. Everything changes. But who to blame? A question I want to ask, why everyone I trust is nothing but a fake, why every step I take is always a mistake. I keep trying hard, but nothing seems to click. I keep asking God why my life is sick. I'm living like a queen, but still I miss something. I have nothing less, but I can't feel happiness. In the whole life, they always say, don't use your heart, only use your brain. Maybe because there is love, but more is hate. The closest people I need go away. When I need them most, I find them lost.
precious, I'm not bad of sense. God, why only me? Why don't you let me win? Why don't you let me win? Still, I keep telling myself life is a game where you have to be strong, where you have to lose before you can gain. So stop being wrong, never lie, and be ready to face the fearful rain. To face the fearful rain. Thank you so much for listening. Very good, very good. थैंक यू आस्था. नाउ उखाड़ फेंका हर दुश्मन को जिसने झांसी का अपमान किया, मर्दानी की परिभाषा बनकर आजादी का पैगाम दिया. नाउ आई वुड कॉल अपॉन रक्षक फ्रॉम CSE MITM फर्स्ट ईयर. Am I audible? Yes. Yes, सर्वप्रथम तो मैं इस मंच और MIT ग्रुप का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे मेरे जीवन की पहली कविता बोलने का अवसर प्रदान किया. मेरी कविता महारानी लक्ष्मीबाई को समर्पित है. मेरी कविता का शीर्षक है झांसी की वो रानी थी, जो कि मैंने सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता से इंस्पायर होकर लिखा है और ये कविता वीर रस में लिखी गई है. शुरू करता हूँ. देख गुलामी गोरों की राजवंशों पर विपदा भारी थी. भड़की ज्वाला सन 57 में आजादी सबको प्यारी थी. लेकर शपथ स्वाधीनता की अग्रसरी महारानी थी. झांसी की वो रानी थी. ब्राह्मण के घर जन्मी मोरोपंत की संतान अकेली थी. नाना की अनुजा वह छबीली थी. तलवारबाजी तीरंदाजी बाल्यकाल में सीखी थी. दिखे छवि दुर्गा की उसमें उसकी आराध्य भवानी थी. झांसी की वो रानी थी. राजा संग ब्याह रचाकर रानी आई झांसी में. बजी शहनाई खुशियां आई झांसी में. लगी नजर खुशियों को किसकी, सन्नाटा छाया झांसी में. बिन वंशज मरे राजा जी शोक समाया झांसी में. देख वीरानी झांसी को डलहौजी उकसाया. झांसी को हथियाने का अच्छा अवसर पाया. हमला कर किले पर उसने फिरंगी झंडा लहराया. झांसी का वारिस बनकर अपना प्रभुत्व बनाया. इन गोरों के हाथों में बिगड़ गई झांसी की काया. झांसी में अब उदासी थी, रानी बनी अब दासी थी. झांसी की वो रानी थी. गोरों की सत्ता के आगे झुक गए नृप कपाल. हुए जब अत्याचार जल उठी शौर्य की महाज्वाल. निश्चय कर आजादी को रानी ने संग्राम किए. त्याग श्रृंगार कलेवर के संग्राम के भूषण धार लिए. जिस पर चमक रहे थे कंगन उन हाथों हथियार लिए. शिशु पीठ पर बांध लिया और राजा को याद किए. युद्ध क्षेत्र में चली सिंहनी गोरों को ललकार दिए. लेफ्टिनेंट वोकर आया लड़ने, उसको मुंह की खानी थी. लहू में लथपथ वोकर भागा, उसको हार गंवारी थी. झांसी की वो रानी थी. घोड़ा थककर घेरा जमी पर और रानी ने किए सहार. हुए पराजय यमुना तट पर, फिर गोरे हुए फरार. रानी बड़ी ग्वालियर पर कर लिया अपना अधिकार. रचा व्यू स्मिथ ने अब फिर सेना घिर आई थी. तब रानी का साथ निभाने कान्हा मंदरा आई थी. इन दोनों ने युद्ध क्षेत्र में पूरी शक्ति लगाई थी. आया हिरोज सैन्य के साथ, फंसी हुई अब रानी थी. झांसी की वो रानी थी. फिर भी रानी कर संग्राम आ गई नाले के पास. घोड़ा थमा और कर न सका नाले को पार. इतने में आ गए शत्रु अपार. रानी एक शत्रु अनेक, होने लगे रानी पर वार. गिरी सिंहनी जख्मी होकर, उसकी यही कहानी थी. रणभूमि में मरकर भी अमर हुई वो रानी थी. ऐसी वो महारानी थी, झांसी की वो रानी थी. धन्यवाद. थैंक यू सो मच सर. Thank you so much, Rakshak. These brought goosebumps to us. महाकाल की नगरी में लेंगे जन्म दोबारा. उज्जैनी की कविता लेकर आ रहे हैं लखन सिंह चौहान फ्रॉम 4th ईयर मैकेनिकल MIT.
Lakan Singh ji? Lakan Singh ji, are you there? Okay, if Lakan Singh doesn't respond, then call someone else. Sir, he is over there, पर उनकी आवाज नहीं आ रही है. There is some problem. अच्छा. Hello? Yes, Lakan Singh ji. Yes, you are audible. Yes, sir. Thank you, sir. Good morning to all. My name is Lakhan Singh Chauhan, and the subject I chosen to speak is महाकाल की नगरी. I start my line with 4 lines. ना चिंता करने वाले हैं, ना चिंता करने वाले हैं, ना किसी से डरने वाले हैं. ना चिंता करने वाले हैं, ना किसी से डरने वाले हैं. महाकाल सरकार का नाम लेकर हर मुश्किल से लड़ने वाले हैं. गर्व से कहो हम उज्जैन वाले हैं. और मैंने और भी कुछ लिखा है. एक कन्वर्सेशन है कोरोना के साथ, जो मैं अधिकतर प्रॉब्लम जो रेज होती है, करंट होती है, उनसे बातचीत के जरिए लिखता हूँ. तो उसी में मैंने कुछ और भी लिखा है कि बात यहाँ से शुरू होती है कि मैं सड़क पर टहलते हुए चला जा रहा था. मैं सड़क पर टहलते हुए चला जा रहा था, सामने देखा तो कोरोना चला आ रहा था. मैं सड़क पर टहलते हुए चला जा रहा था, सामने देखा तो कोरोना चला आ रहा था. मैंने हाथ जोड़े और बोला, कोरोना भाई नमस्कार. कोरोना तो मुझसे सटने को था तैयार. बोला दूर से कैसा नमस्कार, गले लगो मेरे यार. मैंने जैसे तैसे उससे दूरी बनाते हुए, मास्क को अपने नाक पे चढ़ाते हुए, मैंने सोचा इस केस को कैसे जैसे तैसे सुलझाया जाए, इसको अपनी बातों में उलझाया जाए. मैंने पूछा, क्या भाई कोरोना, पिछले 1 साल से इस देश में चल रहे हो, आखिर ये तो बताओ कब यहाँ से प्रस्थान कर रहे हो. मैंने पूछा कि क्या भाई कोरोना, पिछले 1 साल से इस देश में चल रहे हो, आखिर ये तो बताओ कब यहाँ से प्रस्थान कर रहे हो. आखिर कब तक हमें घरों में कैद रखोगे, आखिर कब तक हमें घरों में कैद रखोगे, आखिर कब तक हमारे हाथों पे सैनिटाइजर मलोगे, आखिर कब तक हमें घरों में कैद रखोगे, आखिर कब तक हमारे हाथों पे सैनिटाइजर मलोगे, आखिर कब तक हम मास्क पहने रखेंगे, आखिर कब तक हम अपनों से दूर रहेंगे, आखिर कब तक हम सिर्फ दोस्तों से फोन पे मिलेंगे, आखिर कब तक हम मीट या जूम पर ऑनलाइन पढ़ेंगे. बात पूरी होती कि इतने में कोरोना भाई साहब इतराते अंदाज में बोल पड़े. बात पूरी होती कि कोरोना भाई साहब इतराते अंदाज में बोल पड़े. कोरोना नाम नहीं है, दिलों में बेटा खौफ है. कोरोना नाम नहीं है, दिलों में बेटा खौफ है. और तुम 1-2 की क्या बात करते हो, हजारों की मौत है. अगर यकीन नहीं होता तो 2 सीन्स दिखाए हैं कुछ 2020 में, 2021 में पिक्चर अभी और है. और इसे कुछ और मत समझना. तुम्हारी लापरवाही ने ही कहा मुझसे वंस मोर है. तुम्हारी लापरवाही ने ही कहा मुझसे वंस मोर है. उस पर रिसोर्सेज की कमी तो नाम मात्र है, पर कालाबाजारी करने वाले तुम्हारे यहाँ बड़े बड़े पात्र. इतना सुनते ही अपने खून में आ गया उबाल. अपन ने भी सुना दी उसको 2-4. मैंने कहा, दिस इज यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. ये देश युवाओं का है, यहाँ तेरी खैर नहीं है. और तू जन्मा कहीं भी हो, सुन ले कोरोना, तू जन्मा कहीं भी हो, लिखी तेरी मौत यही है. बनाई है 2 वैक्सीन, कुछ और भी ट्रायल में सही है. बनाई है कुछ वैक्सीन, कुछ और भी ट्रायल में सही है. और कहा ना मैंने, तू जन्मा कहीं भी हो, लिखी तेरी मौत यही है. जय हिंद. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू सो मच. बढ़िया, बहुत बढ़िया. Thank you, Lakhan Singh Chauhan, for your wonderful words. I think this situation is very difficult for us, so I will request all to stay safe and stay home, and also get vaccinated as soon as possible. Now I will call upon Chetna Bhiwade from first year CS MIT. Chetna, are you there? Yes, sir. Okay. An inspirational morning to one and all present here. My poem's title is A Quirky Girl, एक अजीब सी लड़की. And first of all, I would like to introduce what my topic is on. Let me make you people just clear about the theme about my poem, not so meticulously, but in a brief manner. Sir, am I audible? Yes, you're audible. Clearly audible. Okay, sir. This rosary of word was just made when a girl was in a situation of insecurity, unsuccessfulness of her dreams, and was just sacrificing for the sake of her family.
She was just ditched by the people due to some undefined deficiency within her. Wait. मेरी स्क्रीन विजिबल है सर? Yes, your screen is visible. Yeah. I'm a girl with a deficiency. Overthinking is my tendency. Yeah, it goes like, I'm a girl with a deficiency. Overthinking is my tendency. Meeting problem is not a pun. People group me as it's a fun. People group me as it's a fun. Some behave like a razzle. I know you are a bit lazy. Some behave like a razzle. My mistakes are not a Pascal. They showed me some hypocrisy. I know you are a bit lazy. They fakes as they are perpetual, but a coin not to be natural. Let me know that you are guilt. Let me know that you are guilt. Tears flowing as a milky spilt. Bad to best. Bad to best. It's a heart surgery. Word to me are the arrow injury. Word to me are the arrow injury. Lastly, they just apologize. Lastly, they just apologize. Friendship they just qualifies. They show as they are the best. They show as they are the best, leaving me in the lifey hest. I'll end. My deeds will last till scrutiny. I'll end. My deed will last till scrutiny. I'll be my own best testimony. Thank you. Very good. That was very beautiful poem. Now I would like to call Isha Pandey, first year IT MIT. Isha? Isha, are you there? Yes, sir. Oh, please switch on your camera and thank you very much. Good morning, everyone. As per our current situation, I just trying to express my feelings by my words. The title of my poem is मजबूर हुए हम. As you all know, we are मतलब परेशान हो चुके हैं सिचुएशन से, इसलिए थोड़ा सा बस मैंने अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश की है. वक्त के हाथों मजबूर हुए हम, काम किसी के अब आ न सके, घर पर किसी के अब जा न सके, पास होकर भी अब दूर हुए हम. वक्त के हाथों मजबूर हुए हम, आंखों में आंसू अब जम से गए हैं, अपनों में अपने पड़ गए कम, हालात के आगे असहाय हुए हम. वक्त के हाथों मजबूर हुए हम, डूब ही गए सब बहा न कोई, जीवन का मकसद अब रहा न कोई, अब तो थक कर चूर हुए हम. वक्त के हाथों मजबूर हुए हम. एक नई उम्मीद की नई किरण है, उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे हम. वक्त के हाथों मजबूर ना होंगे हम. दूर रहकर भी अब पास है हम, नियमों का पालन करेंगे हम. फिर से चलेंगे, फिर से बढ़ेंगे. वक्त के हाथों मजबूर ना होंगे हम. वक्त के हाथों मजबूर ना होंगे हम. थैंक यू. थैंक यू ईशा. लबों के उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ ही है जो कभी खफा नहीं होती, बस एक माँ ही है जो कभी खफा नहीं होती. Now I will call अतुल शर्मा. मेरी तरफ से सभी को नमस्कार. जैसा कि सभी को पता है कि आज मदर्स डे है, तो उसमें मुझे एक लाइन याद आती है कि माँ का कोई दिन नहीं होता, माँ से दिन होता है. तो मैं अपनी कविता सुनाता हूँ. मेरी कविता है जब हम छोटे हुआ करते थे, उसके बारे में. जब हम छोटे होते थे हम कैसे थे, हम क्या करते थे. तो मैं शुरुआत करता हूँ कि मुझे याद है वो दिन जब हम छोटे हुआ करते थे. माँ माथा चूम कर जगाती थी, पापा कांधे पर बिठाया करते थे, दिन भर बाहर खेलते खूब मस्ती करते थे, बाद में घर आकर बेफिक्री से सो जाया करते थे. कि वो छोटी छोटी बातें आज भी याद है, वो लकड़ी के खिलौने और छुपने के कोने जो मेरे साथ थे, उन्हीं कोनों में हर बार दौड़कर छुप जाया करते थे. मुझे याद है वो दिन जब हम भी छोटे हुआ करते थे. याद है मुझे जब गांव में मेरा जो एक कच्चा सा मकान था, उसी मकान में मेरा एक छोटा सा जहान था. उसी घर में गिरते संभलते फिर उठकर चलते थे.
मुझे याद है वो दिन जब हम भी छोटे हुआ करते थे। वो भी क्या दिन थे जब हम खेल खेल में नहीं खाया करते थे, मम्मी पास बुलाती थी और हम दूर भाग जाया करते थे। कुछ देर बाद मम्मी छड़ी लेकर आती थी, थोड़ी सी मस्ती के बाद पकड़ कर खिलाती थी। खुश थे हम हमारी छोटी सी दुनिया में। दिवाली को हमने भी दिल से मनाया है। अब तो सहम गया है बचपन हमारा, कमबख्त जिम्मेदारियों ने इसे डराया है। कि जिम्मेदारियों के बोझ बचपन में नहीं हुआ करते थे। वो भी क्या दिन थे जब हम माँ की गोद में बैठकर खाया करते थे। वो भी क्या दिन थे जब हम छोटे हुआ करते थे। वो भी क्या दिन थे जब हम छोटे हुआ करते थे। और जैसे कि गौतम सर ने कहा था कि अगर आप कोई दूसरी कहानी, दूसरी स्टोरी अगर सुनाना चाहे तो सुना सकते हैं। एक छोटी सी है, मोटिवेशनल है। तो कुछ यूं है कि तेरी पहचान छुपी तेरे अंदर है, तू क्या खोजे है पग पग पे। जीवन है जी लेना तू, तुझे क्या मतलब है जग सबसे। कि थोड़ी दिल के अंदर दस्तक दे, तू शिकन हटा ले मस्तक से। हर डर को अपने किनारे कर दे, तेरा ऊपर वाला रक्षक है। क्यों जीना यूं डर डर के, अरे क्या मजा जो सब कर ले। क्यों जिए यूं मर मर के, जब मंजिल मिलेगी लड़कर के। तो धन्यवाद सभी का सुनने के लिए। नमस्कार। Thank you, Atul Sharma. Now, further hosting is done by our two anchors, Deepak Utsa and Aarti. So, Okay, Aarti. Thank you so much, sir, for inviting us. खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कौन कब जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। आदर, अभिनंदन, आभार। हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, एंड अगेन अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन टू दिस एब्सोल्युटली वंडरफुल, ब्यूटीफुल एंड ऑस्पिशियस डे that brings together so many special people like you. I'm Aarti Jethania and my co-host Deepak Utra, and we have a pleasure of being your host as for this day. Now, मैं प्रोग्राम की शुरुआत एक कविता की महिमा के ऊपर शैलेश जी लोढ़ा की एक पोएट्री से करना चाहती हूँ कि कविता लक्ष्य है, पड़ाव नहीं है। कविता अनल है, अलाव नहीं है। कविता राज नहीं होती है, सत्य की पुकार होती है। कविता खामोशी नहीं होती, सिंह की दहाड़ होती है। कविता खामोशी नहीं होती, सिंह की दहाड़ होती है। कविता नदियों के कलकल है। कविता माँ का आंचल है। कविता जीवन को जीने का उपाय होती है। इसलिए कविता सांसों का पर्याय होती है। इसलिए कविता सांसों का पर्याय होती है। कविता की रग रग से वाकिफ एक ऐसी हस्ती जो आज हम सभी के बीच में उपस्थित है, जो डायरेक्टर और एक प्रोड्यूसर और राइटर भी है। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट अवर ऑनरेबल चीफ गेस्ट मिस्टर विराज महाजन टू encourage our participants by the lines of poetry. Please, sir. थैंक यू आरती। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इतने लोगों की सुनी एंड आई डोंट थिंक कि मुझे इतना अच्छा बोलना आता जितना आप सब इस एज में कर पा रहे हैं। सो इट्स अ वेरी कमेंडेबल जॉब। आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोगों को इतना मोटिवेशन मिल पा रहा है कि एक पैंडेमिक में भी घर पर रहकर भी यू गाइस आर हैव यूनाइटेड टुगेदर टू क्रिएट समथिंग सो ब्यूटीफुल, सो इंस्पायरिंग। तो सिंस आप लोग सभी माँ के ऊपर भी कह रहे हैं, सो आई एम थिंकिंग टू नरेट समथिंग दैट आई हैव रिटन ऑन मदर। माँ के ऊपर एक्चुअली कैसा है कि बहुत कुछ कहा गया है, बड़े बड़े राइटर्स ने, बड़े बड़े पोएट्स ने, सबने कहा गया है। तो हम कुछ भी कह दें, आई डोंट थिंक दैट वुड बी सफिशिएंट एवर, बट जस्ट माय अटेम्प्ट। आई होप यू guys will like it. Am I audible? Am I visible? जी सर। Yes, you are audible. Viewers. मेरी माँ अब बूढ़ी हो चुकी है, जो चलती थी घंटों इस कमरे से उस कमरे तक, अब बिस्तर से उठने पर ही थक जाती है। बरसों पहले तुलसी का पौधा लगाया था उसने, अब उसमें पानी हफ्तों में ही वो दे पाती है। सूख गई है पत्तियां उसकी, वो तुलसी अब स्वाद भी नहीं दे पाती है। बचपन में हाथ पकड़कर पहाड़ा याद कराया था उसने, अंग्रेजी जाने मेरा नाम लिखाया सिखाया था उसने। अब जब कभी खुद का नाम नहीं लिखना आता है उसे, तो बस मुस्कुराकर दो आंसू बहा देती है। अपने इस दौर को अब वो अपने पल्लू से छुपा देती है। थकी है वो, मेरी माँ थकी है पर हारी नहीं।
अगर देखती है बुखार में मुझे तो झट से नजर मेरी उतारती है। सोचता हूँ ऐसा क्या है जो उसे इतनी हिम्मत दे जाता है। मैं उसका अंश हूँ इसलिए, या उसे बनाया ही ऐसा गया है। वो माँ है, बस प्यार में ही वो सब ये कर जाती है। एक रोज पूछा था मैंने उससे, कब उतारी थी किसी ने नजर तेरी? मेरी नजर कौन उतारेगा आजा, कहकर नानी का कोई किस्सा सुना दिया था उसने। इतना कुछ है जो माँ पर लिखा है सबने, ऐसा कुछ नहीं जो शायद मैं कभी लिख पाऊं। पर मिलूंगा जब उससे वापस, तब नजर जरूर उतार दूंगा उसकी, उसके छोटे हो चुके चेहरे को वापस जो बचपन दिखाना है मुझे। थैंक यू सो मच। Thank you very much, sir. Thank you so much, Virat. Thank you so much, Virat sir, for a beautiful poem. Thank you, Deepak. Now I would like to invite Ruchika Patel from MIT. Please come. Hello. Hello, Ruchika. Hello. Please switch on your. Ruchika, please on your camera. Hello. Okay, thank you. Yes, Ruchika. Good afternoon, one and all. Today is Mother's Day, so my poem is also dedicated to my mother. You have always been my side whenever I need to hide. When I walk through the midst of night, you were the one who drew me to light. When I was sad, you wiped my tears. When I was bad, you caught my ears. When I was full of joy, you brought me a toy. When I was younger, you forget to rest and got me a pie and pudding best. You are different from others because you are my sweet mother. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Ruchika, for your kind words. Now, I would like to invite Tanishq Pandey to come to unmute your mic and present their poetry. Tanishq Pandey. Yes, am I audible? Yes, Tanishq, you are audible. Yes, sure. Yes, yeah. Thank you MIT Groups for this opportunity. जैसा कि आपको पता है कि ये जो समय चल रहा है ये बड़ा थोड़ा नेगेटिव है, कोरोना चल रहा है और इसी के आसपास मेरी कविता है। सभी को ये भी ज्ञात है कि विष्णु जी ने हर युग में कई अवतार लिए हैं, जैसे त्रेता युग में श्री राम, द्वापर में श्री कृष्ण का, और ऐसा माना जाता है कि कलयुग में कल की अवतार आना बाकी है या शायद आ चुका है, और यही कल की अवतार हर बुराई और महामारी का अंत कर कर मानवता की फिर से शुरुआत करेगा। कल की तुमको आना होगा, कल की तुमको आना होगा, ये महामारी को हराना होगा, कल की तुमको आना होगा। फिर महाभारत का रंग छाया है, फिर महाभारत का रंग छाया है, दुर्योधन का नया रूप आया है। आज मानो शकुनियों के लालच ने ये कैसा विध्वंस हाहाकार मचाया है। तुमको विजय शंखनाद बजाना होगा, कल की तुमको आना होगा, कल की तुमको आना होगा। मानव पीड़ा से तड़प रहा है, राम राम बस जप रहा है। मानव पीड़ा से तड़प रहा है, राम राम बस जप रहा है। प्रभु तुम ही हो आस हमारी, देखो ये विश्व तप रहा है। चढ़ाओ प्रत्यंचा इसका वध करना होगा, कल की तुमको आना होगा, कल की तुमको आना होगा। सिंह की भुजाओं का बल, नरसिंह अवतार देखिए कि सिंह की भुजाओं का बल जो देगा आने वाला सुखद कल। सिंह की भुजाओं का बल जो देगा आने वाला सुखद कल। ये विश्वास है मानवता का तुम पर, बस सांसें जिंदा रखना हर पल। चीर कर इस राक्षस को मारना होगा, कल की तुमको आना होगा, कल की तुमको आना होगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद तनिष्क देशपांडे। परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जीवन में, जिनके हुनर बोलते हैं, जिनके हुनर बोलते हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगा सूरज फ्रॉम MIT। हेलो, गुड आफ्टरनून सर, एम आई ऑडिबल? यस। ओके, तो मेरी कविता का शीर्षक है चल पड़ा हूँ उस राह पर। चल पड़ा उस राह पर जहाँ कोई नहीं है चाहता, बढ़ा रहा हूँ हर कदम जो मंजिल को ले जाता। न चाहिए किसी का साथ, तू चाहना है अकेला ही। अभी मंजिल थोड़ी दूर है, बस तू कदम आगे बढ़ाए जा।
कभी डर सताए गुम होने का, बस तू कदम आगे बढ़ाए जा। जल रहा इस धूप में, बस तू कदम आगे बढ़ाए जा। मंजिल का मैं सोच कर भाग खड़ा हो जाता हूँ, सोचता नहीं इस दुनिया का, बस आगे बढ़ता जाता हूँ। इसे पाने की चाह में मैं सब कुछ भूल बैठा हूँ, बस मंजिल मंजिल चिल्ला कर सीने में आग जला लेता हूँ। मैं शून्य से शुरू हुआ, शिखर तक जरूर पहुंचूंगा। एक दिन नाम रोशन कर अपने माँ बाप का आगे बढ़ता ही जाऊंगा। चाहे आए लाख मुश्किलें, पीछे मुड़कर न देखूंगा। चल पड़ा उस राह पर जहाँ कोई नहीं है जाता, बढ़ा रहा हूँ हर कदम जो मंजिल को ले जाता। थैंक यू। थैंक यू सो मच सूरज। कई राजा बने हैं रंक यहाँ, कई रंक बने हैं राजा। वक्त की महिमा जो न समझा, उसका बज गया बाजा। होगा हौसला जिसमें, वही अपने सपने को पाएगा। तेरी क्या औकात है प्यारे, ये वक्त ही तुझे बताएगा, ये वक्त ही तुझे बताएगा। अब मैं बुलाना चाहूंगा अमान शेख फ्रॉम MIT के वो आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। Good afternoon to everyone. My title of my poem is कि ये वक्त। बनाना था अपने सपनों का महल मुझे, पर अब ये शहर अनजान सा लगता है। हवा कम पड़ रही है, दवा कम पड़ रही है, दुनिया में मौजूद हर शख्स बेजान सा लगता है। रात के अंधेरे ने रोशन उजालों को घेरा है, रात के अंधेरे ने रोशन उजालों को घेरा है। माना हर चेहरे पर उदासी का डेरा है, माना दौर थोड़ा मुश्किल है, रात थोड़ी लंबी है, मुसीबत भी एक आई है, माना उदासी छाई है, मगर वक्त खुशहाली भी आएगा। दौर ही तो है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। वक्त ही मरहम लाएगा और हर घाव भर जाएगा, वक्त ही मरहम लाएगा और हर घाव भर जाएगा। आई बड़ी आफत है, पर हर तंगी के बाद राहत है। अगर जिंदगी में जिंदा रहे तो सुकून भी आएगा, जिंदगी में जिंदा रहे तो सुकून भी आएगा। माना कि गमे हालात है, पर ये वक्त भी गुजर जाएगा। और चिंता न कर, पहिया वक्त का धीरे धीरे चलता है। चिंता न कर, पहिया वक्त का धीरे धीरे चलता है। गमों का ये आसमां भी धुलते धुलते धुलता है, गमों का ये आसमां भी धुलते धुलते धुलता है। ये शाम नहीं रोज की जो जल्दी से ढल जाए, ये शाम नहीं रोज की जो जल्दी से ढल जाए। काली रातों का सवेरा ही जो खिलते खिलते खिलता है। और ये ना सोचना कि हार गए हम, ये वक्त है जनाब बदलते बदलते बदलता है। तो बदल देंगे हर रुख हवा का, बदल देंगे हर रुख हवा का, फिर चाहे वो जो भी हो। और कह दो इस वबा को कि जरूरत है हिम्मत है, फिर हिम्मत से क्या ना हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच अमन फॉर योर पोएट्री। जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो। है अंधेरा तो क्या, उजाले का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसका इंतजार है आपको, वो पल भी आएगा जिसका इंतजार है आपको। रब पर भरोसा और वक्त पर एतबार करो, रब पर भरोसा और वक्त पर एतबार करो। अब मैं अपने अगले कंटेस्टेंट नूपुर पालीवाल फ्रॉम MIT को इनवाइट करना चाहूंगी कि वे आए और अपनी पोएट्री प्रेजेंट करे। सो नूपुर, प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड प्रेजेंट योर पोएट्री। Hello everyone. So my poem is about the current situation that is going all over the world. So here it goes like, and just another day, a thought came to my mind. Where are we heading to? To an end to the humanity, to an end to the society, or to an end to the living? Or it might be a start to the new living. Maybe this is going to be normal soon, or as it already became normal. We need to know, we need to wake up. We are losing our loved ones, just like the sand slipping from hand. We can't hold it, neither can do anything to hold it. We can all do is just live with the guilt in our hearts. Is it God's fault, or somewhere we are only the reason behind? I know the words are hard, but the situation is harder though. This is the time we need to know, we need to wake up. I know it's not easy, but in fact it's a joke until it comes to you or your family. But this is the time we need to know. But wear mask not as a formality, but as a responsibility. Stay home not because you fear, but because you care for yourself and for your ones. Thank you so much. Thank you so much Nupur for your kind words. जिंदगी हसीन है, जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो। है अंधेरा तो क्या, उजाले का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसका इंतजार है आपको, वो पल भी आएगा जिसका इंतजार है आपको। रब पर भरोसा और वक्त पर एतबार करो, रब पर भरोसा और वक्त पर एतबार करो।
अब मैं बुलाना चाहूंगा हर्षित सोनी फ्रॉम MIT। हेलो एवरीवन। मेरी पोएम का शीर्षक है ये लुका छिपी अब और नहीं। ये पोएम उस व्यक्ति की ओर से लिखी है जो हमेशा जमाने के अनुसार चलता है और इस कारण से वो अपने आप को कहीं खो देता है। तो पोएम है, जो ठीक नहीं लगता उसे वो छुपाना सिखाता है, जो राज आता है उसे वो दिखाना सिखाता है। जो ठीक नहीं लगता उसे वो छुपाना सिखाता है, जो राज आता है उसे वो दिखाना सिखाता है। खुद को गवाना कैसे वो जमाना सिखाता है। मत नापना अपने को उस पर जो वो पैमाना सिखाता है। गलतियां बेझिझक करना वो डराना सिखाता है। बिंदास जीना जज्बातों को वो दबाना सिखाता है। मत मापना अपने आप को उस पर जो वो पैमाना सिखाता है। गलतियां बेझिझक करना वो डराना सिखाता है। बिंदास जीना जज्बातों को वो दबाना सिखाता है। और मुस्कुरा देना अगर वो गम का बहाना सिखाता है। जो ठीक नहीं लगता उसे वो छुपाना सिखाता है, जो राज आता है उसे वो दिखाना सिखाता है। खुद को गवाना कैसे वो जमाना सिखाता है। और क्या पाया जब दिखाया उसे पसंद हो जो, और छुपाया उसे नापसंद हो वो। नजरों में उसकी मैं गलत या सही, फर्क दोनों में कुछ भी नहीं। खुद को ही मैंने खोया है कहीं, बस ये लुका छुपी अब और नहीं, थैंक यू एवरीवन। बहुत बढ़िया। Thank you, Harshit, for your beautiful poetry. Now, I would like to invite Deepak Rathod from MIT to come here and present your poetry. So please, Deepak, unmute your mic and present your poetry. Deepak, are you here? Deepak, we again recall you. Shinde is also here. So welcome Shinde sir. Sir, now move forward. Okay. Now, first of all, among us, Professor Mukesh Shinde sir is also there. So it is really a privilege that Professor Mukesh Shinde is a true pioneer of art, poetry, and what not. Okay, he is among us. Thank you very much, sir, for joining us. Thank you, sir. Thank you. Very, very welcome to sir to present here. Now we will continue. We will invite our next participant. बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन कुछ तो कम है। अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही खुशी कभी नहीं। अब मैं बुलाना चाहूंगा प्रवीण कुमार फ्रॉम MIT के आए और अपनी कविता को करें। मिस्टर प्रवीण कुमार। गुड मॉर्निंग, आई एम ऑडिबल? हेलो सर, मेरी कविता इसी कोरोना काल में है। सब अपने अपनी मर्जी का लिख रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। और उस इमोशनल में मैंने कल गीता पढ़ी थी, और गीता में कहीं ना कहीं ये लिखा है कि मनुष्य अपने कर्मों का फल, मतलब मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। उसी फल को लेकर आज मैं अपनी कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि कई लोगों की मुस्कान ले गया और आंखों में आंसू दे गया। कई लोगों की मुस्कान ले गया और आंखों में आंसू दे गया। शरीर में सांसों की कमी कर गया, रुकी आंखों में नमी भर गया। आभास भी ना था कि एक ऐसा दौर आएगा। आभास भी ना था कि एक ऐसा दौर आएगा जहां इंसान से खुद इंसान न मिल पाएगा। सपने तो बहुतों के टूटे इस समय के कठिन काल में, कि सपने तो बहुतों के टूटे इस समय के कठिन काल में, अपनों ने भी साथ छोड़ दिया इस मृत्यु के अकाल में। बहुतों ने किसी अपने को खोया है और उसके दुख में खुद को डुबोया, कि बहुतों ने अपने को खोया है और उसके दुख में खुद को डुबोया है। इस काल में तो जान जाना मामूली सा हो गया है। हे भगवान, तू ही बता ये कैसा समय आ गया है। कई दरिंदों ने नारी के सम्मान को न छोड़ा, कि कई दरिंदों ने नारी के सम्मान को न छोड़ा, तो कई ने अपने स्वार्थ के लिए बेजुबान जानवरों को मार डाला। और गौ माता जैसी उस पवित्र देवी को कसाईयों ने न छोड़ा, तो उधर फिर अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों तक को काट डाला।
आज समय फिर हमें चेतावनी दे रहा है कि आज समय फिर हमें चेतावनी दे रहा है, हमारे कर्मों की सजा हमें फिर दे रहा है। अभी भी समय है, अपने कदमों को थाम लो। अभी भी समय है, अपने कदमों को थाम लो और अपने अमूल्य जीवन को ना कभी विराम दो। तो मैं अपने पंक्ति को अंत करते करते उन सभी कोरोना फाइटर्स, जैसे कि हमारे डॉक्टर्स, पुलिस और सभी जो कोरोना से हमें लड़ने में हमारी सहायता कर रहे हैं, उन सभी को नमन करना चाहता हूँ कि सत नमन उन सभी सूरवीरों को, सत नमन उन सभी सूरवीरों को जिन्होंने अपने जान की परवाह किए बिना जीवन दान दिया लाखों को। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण कुमार। खुश रहना हर मर्ज की दवा होती है, इसलिए सदैव खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। कोरोना ने हमें एक बात तो सिखा दी कि दुनिया में इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और धर्म से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। तो आगे आइए और जितना बने लोगों की अपने लेवल पर मदद करिए। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा अफशा खान फ्रॉम MIT के वो आए और अपनी पोएम प्रस्तुत करें। अफशा खान। अफशा, आइए। I'm audible, sir. Yes, you are audible. Good afternoon to everyone. Myself Aksha Khan, first year IT branch. I am glad to be the part of this event. Thank you for giving me this opportunity. It's my first time where I wrote poem and doing poetry before you all. So I start my poem. Happiness, a word and emotions, feeling with near and dear ones. Some people are happy with themselves. Some are not even happy with other ones. Some find happiness in money and wealth. Some find it is little things. It is free for some people, while costly for others. I want to tell you all one thing. Happiness is not something outside. It lies within us. It is made for us. We can be happy by being kind, by forgiving someone. Superpower of human being is happiness. Life is a plain sheet. Fill it with color of happiness. Smile a lot because you can happy. You can smile. Thank you. थैंक यू सो मच अफशा। गुजरता हुआ वक्त गुजर जाएगा, अगर कुछ पास रह जाएगा जो बरसों बाद भी याद रह जाएगा तो वो होगा इस हसीन दिन का कोई रोशन सा लम्हा। इस दिन को और भी हसीन और भी रोशन बनाने के लिए मैं इनवाइट करना चाहती हूँ प्रोफेसर मुकेश शिंदे सर को कि वे आए और अपनी कुछ पोएट्री हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। सो प्लीज मुकेश शिंदे सर। थैंक यू आरती। पर मैं चाहता हूं कि अभी मैं सबको सुन लूं पहले, फिर मैं आपसे बात करूंगा, है ना। सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छी, मतलब इस कोरोना के समय में घर पे बैठे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। और घर पे स्वस्थ भी होंगे, ये बात भी सही है। और एक बात बहुत अच्छी बोली कि जितना हमसे हो सके हम सेवा भाव के रूप में एक दूसरे से जुड़े। और अभी समय ऐसा है कि यहाँ पर सेवा करने से ही मेवा मिलेगा, ये बात भी सही है। तो कम से कम उस नया जो एक नया युग है अपना, नए आप जो एकदम युवा हैं और ऐसी सोच अगर रख रहे हैं तो सबसे बहुत अच्छी बात है। और आने वाला भविष्य और आने वाला भारत एक नया उदय होने वाला है जिसमें इस तरह की सोच को भी प्रधानता दी जाएगी। बहुत अच्छी बात। अब चलने दीजिए, मैं अब बात करूंगा आपसे, बिल्कुल, है ना जी। बहुत अच्छा इनिशिएटिव गौतम सर। मतलब मजा आया। बहुत दिन बाद मेरे को कल्चरल की याद आ गई, बैठे बैठे की वो एक अच्छे से मैनेज हो रहा है। और एक तरफ से ये आरती है जी सर। हम लोग इसी तारतम्य में हम लोग एक दूसरे की घोषणा करने वाले थे। मेरे बच्चों के साथ बोला ही था कि नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं सर, उसका नाम रहेगा, वो उसमें हम लोगों को पूरा आपका ही, आपकी लीडरशिप में, आपकी अध्यक्षता में हमें करना है। उसका नाम रहेगा संगीत संजीवनी। और हम लोग संगीत के द्वारा जो एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट करना चाहेंगे ताकि बच्चों में थोड़ा सा जोश भरे, समाज में थोड़ा सा सकारात्मकता भरे और बच्चे अपने संगीत को, तो उसमें आपका पूरा हम लोगों को सहारा और आपका पूरा सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल सर, मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ रहूंगा, बिल्कुल। थैंक यू सर। जी जी, आरती आगे बढ़ो। कंटिन्यू आरती प्लीज। Okay, sure, sir. So next, I would like to invite Karan from MIPS. Please come, Karan, and present your poetry.
Thank you, guys, and for your opportunity for me. My first time फेस टू फेस बोलने के लिए है। लिखा तो मैंने बहुत सारा है, पर मेरी फर्स्ट टर्न है जब मैं किसी के सामने बोल रहा हूँ। मेरा शीर्षक है क्या कमाल का वक्त आया है, मतलब टाइम चेंज हुआ है उस पर है। क्या कमाल का वक्त आया है, अपनों को पराया और परायों को अपना बनाया है। अपनों को पराया और परायों को अपना बनाया है। पशु पक्षियों को कैद किया था जिस मानव ने, पशु पक्षियों को कैद किया था जिस मानव ने, आज स्वयं को कैद उसने पाया है। क्या कमाल का वक्त आया है। ज्ञान को विज्ञान से जोड़ने वालों, ज्ञान को विज्ञान से जोड़ने वालों, भूगर्भ में छेद करने वालों, ये वायरस ज्ञान ने नहीं विज्ञान ने फैलाया है। ये वायरस ज्ञान ने नहीं विज्ञान ने फैलाया है। क्या कमाल का वक्त आया है, क्या कमाल का वक्त आया है। कौन राजपूत, कौन क्षत्रिय, कौन शूद्र और कौन ब्राह्मण, कौन राजपूत, कौन क्षत्रिय, कौन शूद्र और कौन ब्राह्मण, सभी को शमशान में आज एक साथ जलाया है। मानवता और एकता का पाठ हमें आज एक वायरस ने पढ़ाया है। क्या कमाल का वक्त आया है, क्या कमाल का वक्त आया है। कमी हुई जब प्राणवायु की मारे मारे फिरा वो, कमी हुई जब प्राणवायु की मारे मारे फिरा वो, ले कुल्हाड़ी हाथों में पेड़ों को काट कर जिया वो। कमी हुई जब प्राणवायु की मारे मारे फिरा वो, ले कुल्हाड़ी हाथों में पेड़ों को काट कर जिया वो। बिना रुपये की चीज मिले तो कद्र समझ नहीं आती है। उतर जाता है चेहरा लोगों का, उतर जाता है चेहरा लोगों का जब खुद के रुपयों से चीज आती है। अमूल्य प्राण वायु की कीमत आज एक वायरस ने समझाई है। अमूल्य प्राण वायु की कीमत आज एक वायरस ने समझाई है। क्या कमाल का वक्त आया है। अब कविता को अंत करते हुए मैं जो बोलते हैं कि इस धरती का मालिक मैं हूँ, उनको बोल रहा हूँ। इस धरती का मालिक मैं हूँ बोलने वालों, इस धरती का मालिक मैं हूँ बोलने वालों। विज्ञान झूठा पड़ रहा है, विज्ञान झूठा पड़ रहा है। ज्ञान हमारा छूट रहा है, ज्ञान हमारा छूट रहा है। आजा मेरे मालिक फिर से इस धरती पर, आजा मेरे मालिक फिर से इस धरती पर। सभी का सब्र का बाण अब टूट रहा है। क्या कमाल का वक्त आया है, क्या कमाल का वक्त आया है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच करण फॉर योर काइंड वर्ड्स। नाउ कोरोना काल को देखते हुए मैं कुछ लाइन्स आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ जो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। We may be young or bold, but we must be bold against the enemy untold. We can't go to malls, no can we go to waterfalls, because this virus is scary, sending our spines into shivering. If you have to go out, think twice, wear your mask and be wise. After coming home, sanitize and wash your thighs. COVID-19 is the name. It is playing a hide and seek game. By following the rules, we can ensure end game. So everyone must follow the rules and stay safe, stay home. Now I would like to invite our next participant, Shreyas Nigam from MIT. So please Shreyas, unmute your mic and present your poetry. Shreyas, are you here? All right. Shreyash, are you here? Shreyash. Okay, fine, no problem. If he is not there, then call the next one. All right. If Shreyas is not here, I would like to invite Vikas Vishwakarma from MIT. Vikas Vishwakarma. Yes, ma'am. Yes, Vikas. So please present your poetry. Hello. Yes, sir. Yeah. Good afternoon to all. सर, मेरी पोएम एक सांकेतिक भाषा में है जो द्रौपदी, चिरहरण और नारी शोषण के ऊपर है। कुछ पंक्तियां है।
लीला उसकी हो सकती है, वो जब चाहे तब सूर्य ढले, पर इससे मैं क्या भ्रम पालूं, पर इससे मैं क्या भ्रम पालूं, कल शोषण होगा चांद तले। एक ओर से बातें मत थोपो, एक ओर से बातें मत थोपो, आओ मतलब मिस्री खोले, आओ मतलब मिस्री खोले। रिश्तों की मर्यादा रखकर, रिश्तों की मर्यादा रखकर, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद विकास। ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या मजा है फिर जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या मजा है फिर जीने में। तूफान भी थम जाएगा, तूफान भी थम जाएगा, जब लक्ष्य रहेगा सीने में, जब लक्ष्य रहेगा सीने में। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगा निशा वागले फ्रॉम MIT के वो आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। निशा वागले। यस सर। Is on your camera. Nisha, are you there? She's trying to start. Good morning, sir. My name is Nisha Wagila. I am from MIT. मेरी कविता है, काश जिंदगी सचमुच किताब होती, पढ़ सकती मैं भी आगे क्या बात होगी, क्या पाऊंगी मैं और क्या दिल खोएगा, कब थोड़ी खुशी मिलेगी, कब दिल रोएगा। काश जिंदगी सचमुच किताब होती, फाड़ सकती मैं उन लम्हों को जिन्होंने मुझे रुलाया है, फाड़ सकती मैं उन लम्हों को जिन्होंने मुझे रुलाया है, जोड़ती कुछ पन्ने जिनकी यादों ने मुझे हंसाया है, हिसाब तो लगा पाती कितना खोया और कितना पाया है। काश जिंदगी सचमुच किताब होती, वक्त से आंखें चुराकर पीछे चली जाती, टूटे सपनों को फिर से अरमानों से सजाती, कुछ पल के लिए ही मैं भी मुस्कुराती। काश जिंदगी सचमुच किताब होती, काश जिंदगी सचमुच किताब होती। थैंक यू सर। Thank you very much, Nisha. Thank you so much, Nisha. Now I would like to invite our next participant, Priyesh Nigam from MIT. आरती आपका फोन बज रहा है। Actually, Shreyas is not here. Oh, no problem. All right. Sorry, So now- Tati, sorry to interrupt. I just want to say that you guys have to wrap up your poetry in 3 minutes only. The max time limit is 3 minutes. So some of you have crossed the limit. So from now, please take care of it. Please take care of the time. Okay, ma'am. Now I would like to invite Pritesh Modi from MIT. Thank you. Hello. Pritesh Modi, yes, speak up. Yes, sir. Can I Good. present? Yes, Pritesh. तो सर मेरी पोइट्री जो है आज मदर्स डे है तो वो माँ के ऊपर है, जिसमें जो बच्चा अपनी माँ को खो देता है उसके बाद उसकी फीलिंग्स जो है उसको मैंने बताया है। जब मैं न था तब मुझे बनाया उसने, आया जब गोद में कितना दर्द सहा था उसने, भूख से रोया तब दूध पिलाया उसने, चला मैं तब सहारा दिया उसने, जब धरती की जब मस्ती की तब डांट लगाई उसने, और जब रोया तब चुप कराया उसने, प्यार आने पर सीने से लगाया उसने, स्कूल न जाने पर चॉकलेट का बहाना, प्यार आने पर सीने से लगाना, पढ़ाई न करने पर चपाट लगाई उसने, समझ न आने पर मुझे बात समझाई उसने, यही संस्कार देकर मुझे पाला है जिसने, बड़ा हो बनू सहारा ऐसा सिखाया उसने, क्यों छोड़ दिया मुझे उसने, साथ नहीं है और वो आज मेरे। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रीतेश। टूटने और बिखरने का
चलन मांग लिया, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया। हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हमने हालातों से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिरे और हमने वतन मांग लिया, लोग दौलत पर गिरे और हमने वतन मांग लिया। इन सुंदर सी पंक्तियों के साथ मैं अब गौतम सर को इनवाइट करना चाहूंगी कि सर प्लीज आप आए और अपनी पोएट्री प्रस्तुत करें। सो प्लीज गौतम सर। Gautam sir, are you there? Yes, I am here. I would like to first welcome Dr. Meera Rathore, madam, who is among us. She is head of Department of C Skills, Communication Skills. And Meera ma'am, are you there? Yes, I am here, sir. And thank you so much, sir. And this is really very good initiative taken by you and all the students, those who are here. I am congratulating all the students here, those who are reciting the poems, and they are really very wonderful. मैंने बहुत सारी सुनी तो नहीं है, अभी एक माँ की प्रस्तुति दी है प्रतीश ने, and that was really really wonderful. And thank you so much, sir. बहुत ही अच्छा initiative. Yes, sir, you can carry on, sir. With the kind support of you and our entire administration and college staff, we are going to conduct such kind of. No, sir, this is really very wonderful initiative. Fine. Thank you very much, ma'am. Now, as Aarti, please continue. Sure, sir. Now, I would like to invite Shubham Kumawat from MIT. Please come, Shubham, and present your poetry. Shubham Kumawat. Hello everyone, my name is Shubham Kumawat. Yes, Shubham. My poetry is जो अभी कोरोना में चल रहा है, लाइक लोग डरे हुए हैं उससे कि कुदरत हमारा इम्तिहान ले रही है, कुदरत हमारा इम्तिहान ले रही है, या यूं कहें दबे पैर जान ले रही है। चले थे हम चांद तारों को एक करने, चले थे हम चांद तारों को एक करने, मगर अब धरती भी आसमान बन के जान दे रही है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच शुभम। शॉर्ट एंड प्रेस। थैंक यू शुभम। नाउ आई वुड लाइक टू दो लाइन में ऐड करना चाहूंगा जो मैंने लिखी थी। जी सर। बेसिकली शुभम की जो लाइन थी उसमें दो लाइन और जोड़ना चाहूंगा। रोटी और जेब दोनों जिनके लिए तंग है, रोटी और जेब दोनों जिनके लिए तंग है, सांसों का आना जाना एक हारी हुई जंग है। तो we are listening, reading newspaper, the poor people are the worst affected। गाँव में डेथ्स हो रही है and we do not even know कि किस तरह से कौन उनको पता भी नहीं चल रहा है कि what kind of disease they are suffering। Please continue। Okay. Now I would like to invite Anshika Bhatnagar. Please come, ma'am, and present some kind words from your side. Thank you, Aarti. Thank you for inviting me. First of all, I am very sorry, Gautam sir and all the participants. I was getting some network issue while I joined this meeting. I think I was supposed to greet everyone, but I wasn't able to do so. So, yes, no problem. Respected director sir, all the teachers, Meenal ma'am, Gautam sir, and our chief guest, Viraj Mahajan sir, thank you so much for giving us this opportunity. I must say that director sir has been always our constant supporters. Whenever we go to him and ask for any event, he always support with everything he can do. So thank you so much for this. So yeah, I, Anshika Bhatnagar, head of MGI Abhivyakti, heartily welcomes you all to this Open Mic 2.0 Kavya Abhivyakti by Abhivyakti Creative and Content Writing Club. So I want to just give a short introduction about Abhivyakti. Abhivyakti is... Anshika, please switch on your camera if possible. Yes, sir.
I hope Yes, Anshika. Thank you. I am visible. Yes. So yeah, Abhivyakti is a creative and content writing club of MGI, and it got foundation 1.5 years ago with the aim of give a platform to young students who wanted to work on their creativity and take it to the next level and wanted to meet like-minded people. So we have been conducting various events since then, like poetry competition, story writing competition, and Kavya Abhivyakti, Hasya Kavi Sammelan, and yes, poster competition also. So we are planning to conduct weekly events for you all, and in that series, this is our first event, and I really hope that you guys are enjoying this. And yeah, so with this, I hand over the session to Aarti again, and I really hope that you guys will enjoy it. And best of luck for your results. Thank you, ma'am, for your kind words and for your support in full organization of this event. Now, हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स ने अपनी प्रस्तुति दे दी है. कौन पहुंचा है कभी अपनी आखिरी मंजिल तक? कौन पहुंचा है कभी अपनी आखिरी मंजिल तक? हर किसी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है. ये तुझको लगता है कि तू उड़ने के काबिल नहीं, ये तुझे लगता है कि तू उड़ने के काबिल नहीं. सच तो ये है कि तेरे पंखों में अभी भी उड़ान बाकी है. सच तो ये है कि तेरे पंखों में अभी भी उड़ान बाकी है. कुछ ऐसी ही उड़ान और हमारे इंस्पिरेशन जो हमें कुछ ऐसी ही उड़ान हमारे पंखों में हमारे फैकल्टी कोऑर्डिनेटर अभिव्यक्ति क्लब के प्रोफेसर गौतम चटर्जी सर ने हम सभी के पंखों में भरी है और हम सभी को इंस्पायर करा है हर एक स्टेप पे इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए. सो आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रोफेसर गौतम चटर्जी, फैकल्टी कोऑर्डिनेटर ऑफ अभिव्यक्ति क्लब, टू टेक द माइक एंड गिव द ग्रेटिट्यूड टू एवरीवन. सो सर, प्लीज कम. Thank you very much. Thank you very much, Aarti, and you are conducting and anchoring very well. And definitely, the enthusiasm of the students is. I don't have. I rarely run short of words, but really, it is overwhelming. Overwhelming response of the students and the creativity to the next level, as said by Anshika, is definitely going to the next level. People are joining. People are creating. The virus can kill people. Virus can can stop us breathe, but can it stop us from creating? Can a small virus stop our imagination? These bad days, these are bad days, definitely tremendously bad days and historically bad days. We are living through the most troublesome time of this century. But this will pass, as most of the things have passed. This will pass. Anshika, Naman, Aarti, Shubham, Deepak, and all other students, Yogeshwari and all other students, they are working tirelessly, and definitely their spirit tells us that these bad times will also pass. I had a poem, but mostly my poems are extremely sadistic tone and written in a very sadistic tone. A kind of tragic poet I am. So I don't want to share that. I can share it, but once the event is over. So Aarti, please do continue. यस सर, हिंदी कविता का जो ये सुंदर सा स्वरूप जो मैं आज देखा है, ऐसे कई और इवेंट्स आप सभी का इंतजार कर रहे हैं आने वाले दिनों में, जैसे संगीत संजीवनी जिसके बारे में गौतम सर ने भी बताया, उसके बाद स्टैंड अप कॉमेडी, मोटिवेशनल स्पीच एंड एक्सेट्रा. 2 लाइनों से अपनी बात को विराम दूंगा मैं. बेहतर से खूब, खूब से बढ़कर तलाश कर, बेहतर से खूब, खूब से बढ़कर तलाश कर, और दरिया अगर मिले तो समंदर की तलाश कर, और दरिया अगर मिले तो समंदर की तलाश कर. थैंक यू सो मच. आरती, प्लीज कंटिन्यू. सो मैं सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि जो अनाउंसमेंट है हमारे आज के इस इवेंट के जो विनर्स है उसका अनाउंसमेंट हम अगले आने वाले 10 दिनों के बाद करेंगे. सो क्या अभी कोई और स्पीकर बचे हैं? अभी कोई और स्पीकर बचे हैं? आप में से, ऑडियंस में से कोई अगर सुन रहा है तो do you want to share some of your poems? सर, मैं एक पोएम बोलना चाहूंगा. डेफिनेटली हर्षित. सर, ये जैसे आज मदर्स डे था, मैंने कोई और पोएम प्रिपेयर करके रखी थी, इसलिए वो सुना दी थी, बट मैं चाहूंगा कि मदर्स डे पर मैं ये पोएम भी सुनाऊं. ये एक्चुअली पोएम है. बड़ा नहीं मां नाम से जग में कोई नाम,
उसकी पावन गोद में खेल रहे हैं श्याम। माँ समान कोई नहीं है सृष्टि में महान, वो सबको देती सुधा खुद करती विषपान। माँ के मन के सामने लघु दिखता आकाश, उसकी वाणी में मिले मधु से अधिक मिठास। माँ से पावन नहीं जग में कोई नाम, उसके चरणों में बसे काबा काशी धाम। माँ है ममता की मूरत, माँ है ईश्वर की सूरत, माँ का मन गहरा सागर, वो है अमृत की गागर। माँ गंगा का पावन जल, माँ से है आज और कल। माँ है ममता की मूरत, माँ जग की अहम जरूरत। माँ धरती गंभीर धीर, दूर करती सबकी पीर। दीप ज्योत सीतम हरती, तिल तिल जल उजास भरती। माँ है ममता की मूरत, माँ में ईश्वर की कुवत। माँ का हृदय है आकाश, कोई हद न जिसके पास। माँ शीतल चांदनी रात, उसके आंचल में प्रभात। माँ है ममता की मूरत, माँ है कुरान की सूरत। माँ के हृदय में सैलाब, मुट्ठी में है आफताब। माँ की महिमा महान, पगों में रहते सुल्तान। माँ है ममता की मूरत, माँ स्वर्ग से खूबसूरत। बहुत बढ़िया। मीना मैम, would you like to have a couple of lines? Not sure, sir, about the poetry, but definitely I'll appreciate the students. They are all reciting very well. और आज मदर्स डे स्पेशल पर बहुत ही सुंदर, they are all reciting good poems on Mother's Day. First of all, happy Mother's Day to all of you. Thank you very much. Happy Mother's Day to all. And this is the students are so much enthusiastic in this current pandemic situation. This is the best initiative taken by you, sir, and all the students, those who are creatively doing this and enjoying this and giving their best for this event. So I am congratulating all and hope all the winners, the students, those who are doing well, participating in this, they are good, and best of luck for your winning position. Thank you so much, sir. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. मुकेश शिंदे सर। जी सर। Some line of yours. कुछ lines। आप इतना बढ़िया। Even a song if you play for us. आपकी आवाज सुने, मतलब मैं सच में आपकी आवाज मिस कर रहा हूँ, हम सभी मिस कर रहे हैं। You are शिंदे सर, कुछ हो जाए सर। Nightingale of our college. बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। पहले तो सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि इतना अच्छा इवेंट क्रिएट किया। एक बात जरूर बोलना चाहता हूँ यहाँ पर कि वी आर ऑल आर टेक्निकल स्टूडेंट्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने आप को तो खुश कर रहे हैं, साथ में कुछ ऐसा, बिकॉज इंजीनियरिंग एक बहुत अच्छा वीडियो भी चल रहा था, मैं उसको देख रहा था, सोशल मीडिया पे बहुत स्प्रेड हुआ। वो इंजीनियर्स पे वो एक इंजन जो है उसकी एक मम्मी जो है, उसका छोटा बच्चा उस मम्मी से पूछता है कि क्या मम्मी अभी भी उसके फादर इंजीनियर रहते हैं। वो वीडियो देखा भी होगा आपने, तो बोल रहे कि अभी भी क्या कुछ लोग काम कर रहे होंगे। बोले हाँ, अभी कुछ लोग काम कर रहे हैं, जो इंजन होता है देश का वो अभी भी काम कर रहा होगा। तो मेरा कहने का मतलब इतना है कि कुछ ऐसी क्रिएटिविटी से, आपकी क्रिएटिविटी से कोई ऐसी चीज भी आप इनिशिएट करें जिससे को और सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर हम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सके। हम अपने आप को तो आनंदित कर रहे हैं, अपने आप को तो मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन अपन अपने आप को मोटिवेट करने के साथ साथ हम, बिकॉज वी आर इंजीनियर, हमारे पास एक टैग लगा है, तो हमको कोशिश करना चाहिए कि पूरे पीछे के जो डब्बा है हमारा, उसको भी हम कोशिश करें और कुछ ऐसी इनोवेटिव थॉट्स या इनोवेटिव चीज लेके आए। एक सोशल प्लेटफॉर्म पे हम डिस्कशन करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, जिससे कि वो सोसाइटी के अंदर चले जाए और वो एडप्टेशन हो जाए लोगों के बीच में। नहीं यार, ये इंजीनियर कुछ 20-25 इंजीनियर ने, कुछ 50 या 100 इंजीनियर ने डिस्कस किया और ऐसे कुछ चीज निकाला है, ऐसा। तो ऐसा मेरा सोचना है। सर गौतम सर, प्लीज कभी ऐसा, कभी आपको ऐसा कुछ लगे तो इसमें से कुछ क्रिएटिव बच्चे इनिशिएटिव लेके थोड़ा सा ऐसा कुछ दे दें जो सोसाइटी को दे सके हम, और वो ऐसी चीज है कि सोसाइटी के लिए बहुत फ्रूटफुल हो जाए। तो कि नहीं यार, ये MIT के बच्चों ने 20 बच्चों ने कुछ रिसर्च किया और इस पे ऐसा अभी पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर ऐसी कोई चीज निकाली कि ऐसा ऐसा कुछ होना चाहिए, कुछ भी चीज हो।
डेफिनेटली तो डेफिनेटली वो एक सोशल कॉज के ऊपर हमारी तरफ से एक दिया हुआ समाज को, हमारे तरफ से, हमारे युवा बच्चों की तरफ से, हमारे क्रिएटिविटी की तरफ से, क्योंकि इंजीनियर बहुत क्रिएटिव माने जाते हैं, इनोवेटिव माने जाते हैं, कुछ भी छोटी सी चीज भी अगर होगी तो वो हमारे लिए ज्यादा बहुत अच्छा, अपने दिल को बहुत सुकून देगी कि नहीं यार हमारे इस प्रयास से कुछ ऐसी चीज भी चली गई वहां पे जो सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस थी। छोटी छोटी चीज भी हो सकती है, छोटे बच्चों के पास बहुत नए नए आइडिया रहते हैं, और जो अभी सोच ही नहीं रहा होगा कोई, वो ये सोच सकते हैं। मैं इतना समझता हूँ कि जो अभी क्योंकि वो सीनियर्स लोग अभी मार्केट में है, या वो नॉलेजेबल पर्सन मार्केट में है जो अभी इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चे कुछ नई बात बोल देंगे। तो अगर इनको थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म पे लाकर अगर थोड़ा सा इनको थोड़ा सा बूस्टअप करें तो मेरे ख्याल से ये कुछ नई बात बोलेंगे, और वो नई बात शायद हो सकती है कि समाज और सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो ऐसा मुझे लग रहा है थोड़ा सा कि ऐसा कुछ किया जा सकता है। डेफिनेटली ऐसा कभी आपको सर लगे तो ऐसा कुछ डिस्कशन या ब्रेनस्टॉर्मिंग का सेशन कभी रख सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा ये बच्चे हैं और ये बच्चे बहुत अच्छी बात कहेंगे, ये बात मुझे लग रही है। थोड़ा 50 का स्टफ हो या 100 का स्टफ हो या 60 का हो, 10 का हो, 20 का हो, जितने भी बच्चे हो जो भी बहुत अच्छी बात कर सकते हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पेपर पढ़ते हैं तो पेपर पढ़ते पढ़ते सोचते हैं हाँ इसने ये किया था, नहीं इसको ऐसा कर लेना था, मतलब मनी मन बोलते रहते हैं वो सब लोग। लेकिन पेपर डिस्कशन कराएंगे तो शायद हो सकता है कि हमारी तरफ से MIT का जो टेक्निकल यूथ है उसकी तरफ से मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात चलेगी, समाज के लिए बहुत अच्छी बात चलेगी। यस सर। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। एंड lastly I would like to request Viraj Mahajan sir, who has spared his very precious time for us. Viraj sir. Yes sir. Once again we would like to have your creativity unleashed, some of your poems, one of your chosen poems from your book The Syahi, whose poems I have actually read in snippets in your Facebook feed. Please share some of your poems with us. Definitely, sir. So, lastly, I would like to thank for inviting me here. It has been such an honor. It has been such a long time that I've seen Mukesh Shinde sir here. When we used to study, he had been an inspiration to all of us. He had been into MIT and we were into MIT, yes, sir. But जब भी college fest होते थे, so it was Mukesh Shinde sir जिसको देखते थे हम कि what he is going to perform, what he is going to say. He always has been a very inspiration to all the students. Even though we were not from the mechanical branch, but जब भी MIT में कुछ काम होता था, so he has always been like a pillar for all of us. So thank you, Shinde sir, for your guidance when we were in the college. So as Dr. has requested, I'd like to narrate a couple of poems from my book Syahi. So as Gautam sir was saying that that he has been a very tragic poet. So the same incident goes with me. I always write about tragedy. मेरी जो पहली novel है Derivation of Life, it's about tragedy only. I don't know how to write, means it has been a very I feel very obliged that the life always gives us beautiful things and the sad things. But as human, हमारा काम होता है कि हम कैसे हम sad things में से we look for the positivities. So the book my book Syahi is a collection of such poems जहाँ पर मैंने tragedies में भी अपने emotions के बारे में बात करी है। उन tragic situations को जो मेरे जब मैं बॉम्बे में रहता था उन दिनों में जो होते थे, उन सब collection मैंने इसमें उतारा है। I just read a poem for you all. देख, ये जो तेरी और मेरी बातें हैं ना, ये सिर्फ हम तक ही सीमित नहीं। इसमें कल है, आज है, और वो सब है जो कभी हो सकता था। इसमें वो चंद अल्फाज भी हैं जो तुमने कभी कहे नहीं। इसमें वो जज्बात भी हैं जो मैंने शायद समझे नहीं। इसमें धूप भी है और छांव की झलक भी है। ये बस वो बातें हैं जो हमने कभी एक दूसरे से कही नहीं। इसमें थोड़ी वो शामें हैं जो चाय पीते उन सड़कों पर बिताई थी, और इनमें वो रातें हैं जो तारे गिन गिन हमने सजाई थी। बस यही वो बातें हैं जो अनकही रह गई हैं, थोड़ी अपनी मोहब्बत जैसी, जो बस उन बंद कमरों में कसक खा के रह गई है। इन्हीं बातों से पूछूंगा मैं कभी, बताओ जरा ऐसा क्या था जो कुछ कह सकते थे। बताओ जरा ऐसी और क्या बातें थी जो बिन कहे हम एक दूसरे से कह सकते थे।
कुछ एक बात होती है जो बिन कहे हम एक दूसरे से कह सकते हैं. बहुत शानदार, बहुत शानदार. Thank you so much, sir. Thank you, sir. I really would like to highly recommend that. Okay, please go and on Amazon. It is a top-rated book. Is Books Yai and all other books as well. So please read the books of not an engineer, now an author as well, an engineer turned author, Mr. Viraj Mahajan, and literally it will be a great experience. Reading a book is really a great experience, right? Because when you read a book, you enter in the mind of author and you interact with the author in an exemplastic imaginary manner, as said by Wordsworth. Poetry rises from the tranquility. It is like an emotion that overflows. जैसे पेड़ पे पत्तियां उगती हैं, वैसे कविताएं उगती हैं. So definitely we would love to read his poems more and more. And sir, wishing you very good luck. We hope that you rise to fame and your creativity make you immortal. Thank you very much. Thank you so much, sir. Really appreciate, sir. Thank you. Thank you. It has been an honor to come here. Thank you very much. Okay, and Shika, now you can propose vote of thanks. Yes, sir. Yes, so I would like to thank everyone present here, and especially our director, sir, who is right now not here, for being a constant supporter of all of us. And thank you, Viraj Mahajan, sir. मैंने सिर्फ एक बार सर से बात करी एंड सर वाज लाइक कि यस डेफिनेटली आई विल कम. एंड seriously, meeting you is the best experience because you are our alumni, you are our senior, and we have learned a lot from you. You are an inspiration right now for everyone present here. And thank you, Shinde sir and Meenal ma'am, for joining us in this event and making this successful. Thank you everyone. Thank you all the audience watching us live right now on YouTube and Facebook. And all the participants, I just want to thank you and say best of luck for your results. And we'll probably announcing our result in our next event, I guess. So yes, thank you everyone once again, and let's wrap up the event now. Okay, Aarti. Thank you, everyone. Thank you so much, everyone, who give their valuable time to us to make this event successful. Okay, thank you. Now we can wrap up and we can leave the meeting. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you for this amazing session. Thank you very much. Thank you. Yes, and all feedbacks are welcome. आप लोग अपने फीडबैक भेज सकते हैं. यू कैन शेयर योर फीडबैक. हम लोग किस तरह से इम्प्रूव करें, आप लोग हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं. और डेफिनेटली जैसा कि शिंदे सर ने कहा है, हम लोग नेक्स्ट प्लान करेंगे कि किस तरह से MIT के जरिए हम लोग समाज को, उज्जैन को कुछ ऐसा दे सकें कि वो उनके काम आए. और इस समय में जहां पे सिर्फ कोविड पॉजिटिव चल रहा है, हम लोग कुछ और पॉजिटिव दें. तो सर 2 लाइन कहना चाहूंगा लास्ट में. ओके, तो आप ट्रक के पीछे लिख सकते हैं अगर चाहें तो. ऐसा कि ये दिन बुरे हैं जल्द गुजरेंगे, ये दिन बुरे हैं जल्द गुजरेंगे, मास्क पहन कर रखोगे तो दोबारा मिलेंगे. क्या बात है, बहुत बढ़िया. थैंक यू. Okay, guys, you can leave this meeting, and all feedbacks are welcome. You can contact us on WhatsApp to join our club. Okay. Bye bye, guys. Take care.